Good morning, student, and welcome to Sharadvi More English School online lecture. Okay, we have already started the lesson number 10, cell and cell organelle. Now, yes, we are meeting after very long time. Let's revise it. Yes, we have seen the structure of the cell. In that, we have seen the plant cell and animal cell and the differences between the plant cell and animal cell. So, what we have seen the differences: plant cells have the cell wall, but animal cell do not have the cell wall. Yes, the vacuoles in the plant cells are large, but vacuoles in the animal cells are small. The Golgi, the lysosomes are present in the animal cell and lysosomes are absent in the plant cells. And chlorophyll means plastids are present in the plant cells but it is absent in animal cell. So now yes, then we have studied about the yes in detail about the cell wall. It is made up of what? And yes, cell wall is found in the algae, fungi, and yes, algae, fungi, and bacteria that we have seen. Now yes, next part we have seen the yes plasma membrane. Means plasma membrane is the fragile part which covers the cell component and cytoplasm, and this is common in plant cell as well as animal cell. This also we have seen in the yes previous lecture. Then we have seen how the useful things enter in the cell and how it comes out from the cell. And we have seen the yes two processes for that, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. दो प्रोसेस हम लोगों ने देखा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो अंडर द डिफ्यूजन yes there is a exit or entry of the molecules like oxygen, CO2. Okay, entry or exit of the molecule of the CO2 and oxygen called the diffusion. And osmosis, entry of the water inside the cell or yes coming outside from the cell is osmosis. And yes, we have seen in detail the yes types of the solution. Means hypertonic solution, isotonic solution, and hypotonic solution. So what is the hypertonic solution? When the yes solution outside of the cell environment is yes having the more concentration as compared to the yes concentration inside the cell, then it is called as the hypertonic solution. And when the solution is hypertonic, then the water comes out from the cell, and because of that cell shrink, because of that shrink. And in isotonic, okay, in isotonic the solutions having the both yes both solution means the outside environment and the inside environment is same, that's why the water do not enter or do not leave. And in hypotonic solution, in hypotonic solution the environment, okay, is the environment around the cell is having the less concentration as compared to the concentration of the yes that yes cell. Now yes, here what happens, the water enter into the cell in this case. Next we have seen the cytoplasm. Means yes, cytoplasm is made up of yes the organic as well as inorganic material, and all the cell organelles suspended in it. उसी के अंदर क्या है, ये all cell organelles क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं. उसी के अंदर क्या रहते हैं, वो yes float करते रहते हैं. Next we have seen that yes these cell organelles are very tiny, that's why this can be observed that yes observed using the electron microscope. And then we have seen the function of nucleus. This controls the all processes which takes place in the inside the cell. Okay, now yes, see the endoplasmic reticulum. Yes, from here we have to yes continue. Endoplasmic reticulum, its short form is ER. How many types of the pipelines are there in your buildings home? What are their functions? What will happen if you aren't there? अगर वहाँ पे नहीं होंगे इस तरह के पाइप तो क्या होगा? Yes, all the yes things will get mixed if there is no such type of the pipeline. So yes, we know that in our houses there are the drainage pipeline, there is a water supply pipeline, and in some building there are the gas supply pipeline.
The organelles which conduct various substances inside the cell is called endoplasmic reticulum, ER. ER. And ER has a net-like structure consisting of interconnected miniature tubes and sheaths filled with the fluid. Now yes, ER have net-like structure, and in this net-like structure there are miniature tube. उसके अंदर मिनी बहुत ही छोटे साइज के ट्यूब्स है, एंड दैट ट्यूब इज फिल्ड विद द फ्लूइड, और ये ट्यूब किससे भरे रहते हैं? फ्लूइड से. ER is connected to nucleus from the inner side to the plasma membrane from the outside. नाउ यस, ये जो ER है वो क्या है? न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है, और किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन सेल मेम्ब्रेन. Rough ER has ribosomes granules on its outer surface. जो रफ ER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं. नाउ फंक्शन ऑफ ER, इट इज़ द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द सेल. ये क्या है? ये सेल का फ्रेमवर्क है जो सेल को सपोर्ट करता है. कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, इट कंडक्ट द प्रोटीन. Toxins that have entered the body through the food, air and water are made water soluble by ER and then flushed out of the body. और जो भी टॉक्सिक मटेरियल, हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल दैट एंटर इन द बॉडी, yes, in the cell, that are thrown out by dissolving into the वाटर में उसको डिजॉल्व करके वो क्या होते हैं? उस सेल से बाहर आते हैं. व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू पैक योर फेवरेट बिस्किट्स एंड चॉकलेट? अब बिस्किट और चॉकलेट को पैक करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? यस, प्लास्टिक. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री? तो यस, पैकिंग डिपार्टमेंट यस पैक द फूड मटेरियल सो दैट इट कैन यस रिमेन सेफ फॉर यस मेनी डेज. यस, सेफिंग यही पैकिंग डिपार्टमेंट का क्या है? यस, फंक्शंस होता है. नाउ लेट्स सी यस विच सेल ऑर्गेनेल डू द फंक्शन ऑफ द यस पैकिंग. नाउ सी द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. फिगर 10.9 is the figure of the Golgi complex. Okay, now you see cis phase. Look here in the diagram. These are called cisternae, cis phase, and yes, fusing vesicle and lumen, and new vesicle and secretory vesicle. Now see, it is made up of 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other. Now Golgi complex, it is made up of what? 5 to 8 hollow. hollow का मतलब खोखला, 5 से 8 खोखले, और फ्लैट सैक, और क्या है? चपटे गोनी की तरह के स्ट्रक्चर्स है, और ये पैरेलल एक दूसरे के प्रेजेंट है. दिस सैक आर कॉल्ड सिस्टर्नी. इन सैक को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी. एंड आर फिल्ड विद द डिफरेंट एंजाइम्स, और इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स फिल्ड होते हैं. नाउ ये सी इट्स सिस्टर्नी. तो ये क्या है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, गोनी की तरह का स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के क्या है? ये पैरेलल है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? यस, एंजाइम्स फिल्ड है. क्या फिल्ड है? एंजाइम्स. The protein containing protein coming from ER are enclosed in vesicle which come towards the Golgi complex via cytoplasm. अब जो प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है उसको ये क्या करती है? एनक्लोज करके रखती है. दे फ्यूज विद द formation face of the Golgi membrane and empty their content in the cisternae. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन से क्या है कैरी करके लाता है उसको इस सिस्टर्नी के अंदर रिलीज कर देता है, इसके अंदर क्या करता है? छोड़ देता है. एज दे पास थ्रू द सिस्टर्नी दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. अब जैसे जैसे ये प्रोटीन आगे फॉरवर्ड होता है वैसे वैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है, एंड दैट प्रोटीन्स are modified. Okay, and yes, for modification the different enzymes help in this process. They are again packed in the vesicle, और उसके बाद में देखो यहाँ पे न्यू वेसिकल, छोटे छोटे सर्कल्स है, उस वेसिकल में क्या है? ये वो एंजाइम पैक है प्रोटीन के साथ. ओके, यहाँ पे देखो सेक्रेटरी वेसिकल, ये रिलीज करेगा जो उसके अंदर एंजाइम फॉर्म हुआ है. नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखो ये न्यू वेसिकल. ये वेसिकल क्या करेंगे? इसके अंदर ये प्रेजेंट है क्या? वो एंजाइम्स एज वेल एज प्रोटीन्स. एज
they pass through the cisternae. They are chemically modified with the help of enzyme. They are again packed in the vesicle. This vesicle exists from the maturation phase. The cisternae work like a पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंस। तो ये जो सिस्टर्नी है उसका फंक्शन क्या है? ये जो पैकिंग डिपार्टमेंट करता है वही फंक्शन इसका भी है कि मटेरियल को पैक करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ फंक्शंस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ सेल, सेल का सेक्रेटरी ऑर्गन है। इट मॉडिफाइज शॉर्ट एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल। अब ये जिसका फंक्शन जो है, जो सेल्स के अंदर मटेरियल फॉर्म होता है उसको पैक करना। फॉर एग्जांपल अब ये किस किस मटेरियल को पैकिंग करती है? एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन, पिगमेंट्स एटसेट्रा, एंड डिस्पैचेस देम टू वेरियस टारगेट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एटसेट्रा। एंड डिस्पैच करती है, वहां तक क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है ये? उसको वहां तक पहुंचाने का काम करती है जो साइट पे उसकी ज़रूरत होता है। मरियम, ओके, ये हु इज ड्राइंग दिस? ओके, नाउ ये सी what are its functions? Functions क्या है? To pack the materials which are synthesized in the cells, for example enzyme, mucus, protein, pigment etc. It produces vacuoles and secretory vesicle. It help in the formation of the cell wall, plasma membrane and lysosome. तो ये इसका क्या है? ये सेल किस किस चीज़ों में करती है? सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। नाउ यस, नेक्स्ट पार्ट इज द लाइसोसोम. What happens to the agriculture waste after few days when it is dumped in the compost pit? That waste is decomposed. That is decomposed in the compost pit. Due to various metabolic activities in the cell, organic waste is generated. Lysosome digests the waste. Ab now yes, due to metabolic activities, yes, that cell generate the waste material and that waste materials are digested by the lysosome. लाइसोसोम उसको क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? ये क्या क्या प्रेजेंट रहता है? एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द वेस्ट मटेरियल which are generated in the cell. Now functions. Immune system. It destroys viruses and bacteria that attack the cell. Lysosomes, because it contain the digestive enzymes, so when it release on viruses and bacteria which attack the cell, so yes, in this way, yes, it help in the immune system. ये क्या करता है? immune system को help करता है। Demolition squad. It destroyed the worn out cellular organelle and organic debris. अब ये क्या करता है? जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब जो क्या है, ये डेड हो गए, किल्ड हो गए, मर गए हैं, तो वैसे सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम क्या है? ये लाइसोसोम करता है। और ये किसके थ्रू करता है लाइसोसोम? यस, यूजिंग द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन इट। Suicide bags. Suicide bags. When a cell become old or is damaged, lysosome burst and enzyme digest their own cells. जब वो सेल्स क्या होता है? ओल्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, दैट टाइम लाइसोसोम बस्ट एंड एंजाइम्स आर रिलीज एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेल इज it digested itself. During the starvation, lysosome digests stored protein fats. Due to starvation, अगर starvation करते हैं मतलब कि हम लोग क्या है? उपवास करते हैं, तो उस टाइम लाइसोसोम क्या करता है? जो उसके अंदर प्रोटीन्स और फैट्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम वो लाइसोसोम्स करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट पार्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? दैट वी हैव टू सी। Which type of energy is required to run the fan, computer and electric
bulbs. Where is this energy purchase? Where is this energy produce? अब ये एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अब देखो ये क्या है, फैन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, सबको रन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। और ये कहाँ पे कैसे जनरेट होता है? यस, यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्यूल, यस, यूजिंग द जनरेटर एंड yes, magnets, the electric energy is generated. The cell, each cell requires energy and this energy is produced in the mitochondria. Now yes, for doing all the processes in the cell, the yes energy is required and this is produced by the mitochondria. Under the electron microscope, a mitochondrion is seen as a double membrane structure. When it is observed under the electron microscope, जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिखाई देता है? ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है. मीन्स इट इज मेड अप ऑफ द टू yes membrane. Its outer boundary surrounded by two membrane. The outer membrane is porous and inner membrane is deeply folded. आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर का मेम्ब्रेन है पोरस है. पोरस का मतलब क्या है? यस, दैट कंटेन द स्मॉल टाइनी होल्स, जो जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स है उसको क्या बोलते हैं? पोरस. जिसमें लिस्ट में जिसका जिसका लिस्ट में नहीं है इसका नाम, वो जो आया साइन करने क्या बोलते हैं? एक बार वापस आप मैसेज भेजो कि आप ग्रुप में हो ना एडमिन में, एक सिर्फ जिसका नाम है वही सबका, उसमें देखो उसका फॉर्म होगा तो साइन ले लो, ओरिजिनल साइन उसमें नहीं है, वो वाले फोल्डर में यहाँ पे होगा. फोल्डर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट and send one message. The outer membrane is porous and inner membrane is deeply folded. जो बाहर का membrane है वो कैसा है? Porous means it contain the small holes and inner one is folded. These folds are called cristae और इस fold को क्या बोलते हैं? Cristae. Now see the cristae are shown in the yes in the diagram of the mitochondria. The inner cavity is filled with proteinaceous gel. इनर कैविटी इज फिल्ड विद द प्रोटीनेशियस जेल. अंदर की कैविटी जो है ये प्रोटीन के जेल से क्या रहती है? फिल्ड रहती, भरी रहती है. जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग द राइबोसोम, और उसके अंदर जेल लाइक मैट्रिक्स रहता है और उसके अंदर राइबोसोम्स रहते हैं. फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड डीएनए. The inner cavity is filled with what? Proteinaceous gel-like matrix containing ribosome, phosphate granules and DNA. जो इसकी अंदर की कैविटी है उसके अंदर प्रोटीनेशियस जेल भरा रहता है. अलॉन्ग विद दैट उसमें राइबोसोम्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और डीएनए भी प्रेजेंट रहते हैं. Therefore, it can produce its own proteins with the help of enzyme. Mitochondria oxidizes carbohydrate and fats in the cell. Energy released in this process is stored in the mitochondria in the form of ATP. Now जो energy release होती है, okay, so that is yes stored in the form of ATP, and you have to remember the yes full form of ATP, adenosine triphosphate. Plant cells have less mitochondria than animal cells. प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल्स. जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया होती है कंपेयर टू द एनिमल सेल. मीन्स एनिमल सेल कंटेन द मोर माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज एनिमल्स रिक्वायर द मोर एनर्जी एंड दैट्स वाई यस मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. Function: to produce the energy rich compound ATP. To produce the energy rich compound ATP. Energy rich compound ATP को प्रोड्यूस करना इसका मेन फंक्शंस है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिक्विड एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी इन ATP.
अब दूसरा फंक्शन क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड। इस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का क्या करना, सिंथेसिस यूजिंग द एनर्जी इन एटीपी। नाउ यस नेक्स्ट पार्ट इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे we have studied that yes, vacuoles are large in the plant cell and small in the animal cells. Vacuoles are storage sac for solid or liquid content. Vacuoles are storage sac for solid or liquid content. तो जो वेस्ट क्रिएट होता है वो लिक्विड और क्या है, सॉलिड फॉर्म में वैक्यूल्स उसको स्टोर करने का काम करता है। दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज, उनका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल, और सेल के ज़रूरत के हिसाब से ये अपने शेप और साइज को क्या करते, चेंज। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड इट इज सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। नाउ फंक्शन to maintain the osmotic pressure of the cell, it help in the maintaining the osmotic pressure of cell, to store the metabolic byproducts and end products। ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट जो उसमें रिएक्शन से जो भी प्रोसेस होते हैं उसके जो रिएक्शन से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं और एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा। In animal cell, they store waste products and food. In animal cell, they store waste products and food, while in amoeba, it store food before digestion। अब ये जो एनिमल सेल्स है, उस एनिमल सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है फूड के डाइजेशन के टाइम, उसको फूड के ये फॉर्मेशन के टाइम उसको ये स्टोर करने का काम करता है। एज वेल एज यस इन अमीबा इट स्टोर द फूड बिफोर डाइजेशन, उस फूड के डाइजेस्ट होने के पहले फूड को ये स्टोर करने का काम करता है अमीबा में। इट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम। अब प्लांट सेल्स में क्या है, इसके अंदर फुल ये क्या है, सॉल्यूशन भरा रहता है जिसकी वजह से वो सेल को टर्जिट और रिजिड, रिजिड मतलब हार्ड, टर्जिड मतलब स्वेलन, तो उसे फुगा हुआ और हार्ड बनाने का काम करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज द प्लास्टिड। नेक्स्ट वन हमको क्या देखना है, प्लास्टिड के बारे में। ओके, तो वाई आर द प्लांट लीफ ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू। वाई आर द प्लांट लीव्स ग्रीन एंड फ्लावर रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू। द ऑर्गेनेल्स, the organelles which gives such a color is present only in the plant cell. It is called the plastic. Why are the plant leaf greens? लीफ क्या होते हैं प्लांट के, ग्रीन क्यों होते हैं, एंड फ्लावर्स रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू क्यों होते हैं? तो इसके पीछे क्या इस रीजन है, बिकॉज दैट प्लांट सेल्स कंटेन द प्लास्टिड एंड प्लास्टिड कंटेन द yes the pigments, coloring pigments, and because of that color pigment their leaves are green and the flowers have the different colors. The organelles which give such color is present only in the plant cells. It is called plastic और उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। plastids have the double membrane and are of two types। ओके, तो प्लास्टिक में क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन का बना है और ये भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है प्लास्टिड्स। और दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द plant cell, not in animal cell। So that's why plants are having the different colors of flowers and have the green leaves, but human being do not have a such type of the yes characteristics। Now see the color of the plant and pigments। Now yes, two type of the plastids are, first one is the leucoplast। leucoplast is white और colorless plastids। जो ल्यूकोप्लास्ट ये प्लास्ट होते हैं, मतलब ल्यूकोप्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या है, वाइट कलर के और यू कैन से कलरलेस होते हैं। एंड क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्लास्टिड्स होता है, उसके अंदर क्या है, कलर पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, कलरफुल। नाउ ये कलर ऑफ द प्लांट पार्ट्स एंड पिगमेंट्स। कलर ऑफ द प्लांट पार्ट्स एंड पिगमेंट, फर्स्ट वन ग्रीन, color of the plant part green, example leaves। now yes, leaves are green because of the pigment chlorophyll। orange color present in carrot, जो गाजर है, कैरेट है, उसमें ऑरेंज कलर कैरोटीन नेम के पिगमेंट की वजह से होता है। यस, येलो कलर ऑफ द फ्लावर्स,
Yes, this is because of the xanthophyll pigment present in the plant cells. Next one, purple and blue. And this purple and blue color is only because of the anthocyanin present in the plant cells. Dark pink, example beetroot. So now yes, this is the because of the pigment बीटा लेंस. बीटा लेंस पिगमेंट की वजह से क्या है, ये उसके अंदर जो है पिंक, डार्क पिंक कलर बीटरूट में मिलता है. तो नाउ ये कलर क्लोरोप्लास्ट is made up of what? Plastid. And it is of, yes, two type. One is called leucoplast, which is white or colorless, and one is called the chromoplast, which is colorful. Chloroplast can get converted into the other type of the chromoplast. Example, raw green tomato turn red due to the breakdowns of the chlorophyll and synthesis of the lycopene. जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रॉ ग्रीन टोमेटोज जो क्या होता है, ये कच्चा हरा जो टमाटो होता है वो रेड में टर्न हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है. आप सभी लोगों ने देखा कि ये क्या जो टोमेटो होता है, टमाटर जो होता है, यस, वो कैसे रहता है, शुरुआत में ग्रीन रहता है. ब्रिंजॉल भी रहता है, वो ग्रीन रहता है. तो ब्रिंजॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पर्पल कलर में. एंड ये जो क्या है, ये टोमेटोज है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में. और यस, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है. बिकॉज यस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. तो जो क्लोरोफिल था उस टाइम जो है उसमें ग्रीन कलर था टोमेटोज में. अब जब उसका ब्रेकिंग हुआ तो ब्रेक होने के बाद में क्या है, यस लाइकोपिन में कन्वर्ट हो जाता. वो ब्रेक होकर क्या हो जाता, लाइकोपिन में कन्वर्ट हो जाता. और लाइकोपिन का जो कलर है वो रेड है. Now yes, chloroplast activity. Take out the thin peel or rheo or croton leaves and observe the chromoplast under the compound microscope. अब क्या करना है हम लोगों को, yes, जो पीलिंग्स है थोड़ा सा छील करके उसका अपर पार्ट लेना है हम लोगों को क्रोटॉन लीव्स का. क्रोटॉन एक क्या है, प्लांट का नेम है. Chloroplasts are important for the photosynthesis process that takes place in the leaves. अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये किसके लिए जरूरी है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. Chlorophyll in the chloroplast trap the solar energy and convert it to the chemical energy. And जो क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है वो सोलार एनर्जी को ट्रैप करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू द, यस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू द ग्लूकोज. स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट, जो स्ट्रोमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है यस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो उसका फंक्शंस क्या है, जो एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट उसको क्या करना, फोटोसिंथेसिस करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना. नाउ यस फंक्शंस क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलार एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. यस, इसका क्या फंक्शंस है, मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलार एनर्जी टू केमिकल एनर्जी मीन्स फूड, उसको फूड में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट वन, द क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर्स टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट मीन्स दे आर डिफरेंट कलर, दे कन्वर्ट द फ्लावर्स एंड फ्रूट इनटू द डिफरेंट कलर्स. ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स. जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ये सिंथेसाइज करता है और स्टोर करने का काम करता है. ये किस किस चीज़ को, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स को. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स एज वेल एज replicate themselves as they have their own DNA and ribosomes. जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स है वो खुद रिप्लिकेट हो सकते हैं, खुद से क्या है, ये एक से दो, दो से चार, इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं. बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, क्योंकि उनके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट है.
After studying the cell and cell organelles, you must have come to know that all the functions in the plants and animal cells are taking place smoothly due to the cell organelles. यस अब भाई हमने क्या किया, स्टडी किया बहुत सारे टाइप के सेल और सेल ऑर्गेनल्स का, और इससे हमको क्या पता चला, यस उनके फंक्शंस क्या है. सच डेवलप्ड सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया. लेट्स नाउ कंपेयर देम. अब यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट ईयर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर क्या है, ये जो अदर cell organelles they are not developed, and this year you have seen the yes eukaryotic cells. In these different types of the organelles are present. Work of institute: National Center for the Cell Science NCCS is an independent institute working under the Biotechnology Department of Government of India. It is located in the campus of the Savitribai Phule Pune University, Pune, and involved in the research in cytology. What is the cytology? Cytology is the branch of science which mainly deals with the study of the different types of the cells of the living organism. ये जो सेल साइटोलॉजी है, ये क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जो क्या है, मेनली डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बारे में स्टडी करती है, और उनके अंदर पाए जाने वाले जो क्या है, ये सेल ऑर्गेनल, उनके बारे में स्टडी करती है. इट प्रोवाइड द सर्विस फॉर द नेशनल एनिमल सेल रिपोजिटरी. इट मेनली वर्किंग ऑन रिसर्च अबाउट द कैंसर ट्रीटमेंट. और ये जो है मेनली कैंसर सेल्स और उसके इस कैंसर के सेल्स और उससे होने वाले डिजीज के क्या है, ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करती है इंस्टीट्यूट. नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. अब क्या देखना हम लोगों को, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में कंपैरिजन. Okay, now see the eukaryotic cell. First you understand the meaning of eukaryotic cell and prokaryotic cell. The eukaryotic cells have the well developed nucleus. उनके अंदर well developed nucleus होता है, और ये prokaryotic का nucleus as well as their yes cell organelles are not well developed. So now see the first point, eukaryotic. The size 5 to 100 micrometer. The size of the eukaryotic cell is 5 to 100 micrometer, and size of the prokaryotic cell is 1 to 10 माइक्रोमीटर. अब यहाँ पे इसका जो साइज है 1 से लेकर कितना है, 10 माइक्रोमीटर का. नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. नाउ यस इन यूकैरियोटिक सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर मोर देन 1, एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज ओनली 1. उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोजोम्स होगा, बट यस यूकैरियोटिक में मेनी. न्यूक्लियस अबाउट द यूकैरियोटिक सेल. Eukaryotic cells have the nucleus, and thus nucleus membrane, nucleolus and न्यूक्लियोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन इट. अब ये इसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियोलस है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी वेल डेवलप होता है. आज कितना पूछे पहले के भाई, ये तो प्लान है. इसका दो ना, इसका नाम ये है तो 1000 ही है ना, ये पीछे 500 टू कभी पाएगा कवर में है इधर तो 4500. तो ये 4500 है, तो 4000 का है किसकी लास्ट ईयर. चलो सब पीछे ले लो, पीछे आगे दिखाने के लिए मुझे फॉरवर्ड करना.
Okay, now yes, let's see the yes about the nucleus. Let's revise it again. With nucleus membrane, with nucleus membrane. Now yes, nucleus is surrounded by the nuclear membrane and it contains the nucleolus and the nucleoplasm. उसके अंदर nucleolus भी होता है और nucleoplasm. What is the nucleoplasm? The fluid which is present inside the nucleus. जो nucleus के अंदर जो fluid present रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? nucleoplasm. Now here yes, nucleoid resembling the nucleus. So here there is a no true nucleus, but yes nucleoids are present and that resemble to the nucleus. तो nucleoid present रहता है जो nucleus की तरह ही होता है, but वो actual में nucleus नहीं होता. yes mitochondria and plastids. Here mitochondria and plastids are present. They don't have the membrane bound cell organelles, but yes in prokaryotic cell membrane bound cell organelles are absent. मतलब ऐसे cell organelle जिसके around ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन होता है वैसे सेल ऑर्गेनल्स क्या है ये उसके अंदर अब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट रहते नहीं है, मिलते नहीं है. एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इन द हाईली evolved unicellular and multicellular plants and animals. Now this eukaryotic type of the cells are present in unicellular as well as multicellular living organism, but they are present in the highly evolved बहुत ही वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलता है. बट यस द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द प्राइमिटिव टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्राइमिटिव टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये मिलता है. एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एंड सम फंगी में ये क्या है मिलता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलता है. Okay, yes, now student unmute yourself and yes ask the question if you have any doubt. Yes student, now yes unmute yourself and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. Yes, yes student, is anybody having any doubt? Is anybody having any doubts? Yes student, Tuba, Shahid, Ikra, Sania, is anybody having any doubts? Okay, now see the question who I am. I am ATP producing factory. So yes, what will be its answer? Tell me. आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री मीन्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो क्या करती है एटीपी प्रोड्यूस करती है. टेल द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनल. यस स्टूडेंट, गिव द आंसर. आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री.